Hello students, we are going to start with insurance and annuity today. In that we are going to see insurance, the meaning of insurance, types of insurance, and then we'll start with exercise number 2.1. So let's see what do we mean by insurance. The word insurance means creation of some security or monetary protection against a possible damage or loss. सो अगर कुछ पॉसिबल लॉस या डैमेज है तो उसके लिए अगर कुछ मनी सेव कर सकते हैं, मॉनिटरी दैट इज सिक्योरिटी, मॉनिटरी सिक्योरिटी, देन दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस. Insurance is a legal contract between an insurance company that is called as the insurer and a person covered by the insurance that is called as insured. So here इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस, सो दैट इज इंश्योर्ड. सो in fact we can say that an insurance policy is a legal document of the contract or agreement between two parties, the insured and the insurer. So insurance policy भी हम बोलते हैं it is a legal document between the insurer and the insured. So let's see what are the types of insurance. Insurance is of two types. The first one is the life insurance and the second one is the general insurance. So let us see what do you mean by life insurance and what is the general insurance. First we'll see about the life insurance. A person who wishes to be insured for life agree to pay the insurance company a certain amount of money periodically. This amount is called as a premium. Now insurance, life insurance, there are many companies in the market who give the life insurance, but the most of them, that is LIC, that we call Life Insurance of India. So we have heard about LICs. Now here LICs mostly give us the life insurance policy. Now here what the person do is, whoever wish to do a life insurance policy, what they do is they are agreeing the insurance company that they are going to pay some amount. कुछ अमाउंट वो पे करेंगे पीरियोडिकली, ओके, एंड दिस पीरियोडिकली अमाउंट जो पे करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम. द पीरियड ऑफ द पेमेंट कैन बी अ मंथ, अ क्वार्टर, हाफ ईयर और अ ईयर. सो ये जो पेमेंट भरने का तरीका होता है वो मंथ वाइज हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मतलब 3 मंथ्स बाद, देन इट कैन बी हाफ ईयरली और इट कैन बी ईयरली. In return, the insurance company agrees to pay a definite amount of money in the event of death of the insured or maturity of the policy, that is at the end of the contract period. This amount is called as the policy value. Now let's take an example. Suppose we are buying an insurance policy. Suppose मैंने एक insurance policy buy किया है of 10 lakh rupees. Okay, so I'm buying a insurance policy of 10 lakh rupees. अब मैंने अग्री किया हुआ है कि ये इंश्योरेंस जो मैंने लिया हुआ है उसका मैं पेमेंट करूंगी एंड आई एम गोइंग टू डू द पेमेंट फॉर से 20 years. सो द पेमेंट विल बी डन फॉर द 20 years. ओके, अब जब मैं 10 lakhs का पॉलिसी ले रही हूँ तो आई एम गोइंग टू पे द LIC कंपनी सम अमाउंट मंथली. अगर मैं मंथली ले रही हूँ तो मैं मंथ में कुछ अमाउंट भरूंगी, अगर क्वार्टरली ले रही हूँ तो 3 मंथ के बाद पैसे भरूंगी, हाफ ईयरली 2 बार ईयर में पैसे भरूंगी या फिर ईयरली. ना सपोज आई टेक अ ईयरली पॉलिसी, तो मैं क्या करूंगी, ईच ईयर आई एम गोइंग टू पे द LIC कंपनी सम अमाउंट. ओके, से सपोज एनी अमाउंट आई एम गोइंग टू पे. सो लेट अस टेक द अमाउंट इज से X, तो मैं X अमाउंट हर ईयर को भरने वाली हूँ, ईयरली आई एम गोइंग टू पे टू द कंपनी. नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ सपोज इन बिटवीन, अगर in case I am dead, okay, in case I pass away, then my family is going to get the whole amount, that is 10 lakh rupees or whatever is the
वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी पेड बाय द LIC ओवर हियर। अगर मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो पूरा 10 लाख उनको मिल जाएगा। नाउ इन केस आई हैव पेड द पॉलिसी फॉर 20 ईयर्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जब मेरा 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी वैल्यू भरने का, तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 10-20 ईयर्स का, तो जितना भी अमाउंट बन रहा है दैट इज 10 लाख रुपीज, तो ये 10 लाख रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बी गिवन टू me. In case of death, it will be given to the family. In case I am not dead, then the money will be given to me after the end of the contract. I hope you have understood this. Now, whatever this monthly payment I am going to do, this monthly payments are called as premiums. Is it clear? Okay. Now, this is what about life insurance. Next is general insurance. Now, let's look about general insurance. जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के बाकी सभी का इंश्योरेंस आता है इन जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस अलाउज अ पर्सन टू इंश्योर प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, गोडाउन्स कंटेनिंग गुड्स अगेंस्ट अ पॉसिबल लॉस दैट इज टोटल और पार्शियल ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। Now what happens in जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस में आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस ले सकते हो। यू कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग, यू कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्रीज, यू कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन्स विच आर कंटेनिंग गुड्स, या फिर खाली गोडाउन्स का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। देन यू कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ योर गुड्स, जैसे कि अगर आप ज्वेलरी का इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप उसका भी ले सकते हो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कैन बी टेकन इन जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी। नाउ दिस इंश्योरेंस इज टेकन either total or partially। मतलब now whenever I'm taking a insurance, चाहे मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना भी ज्यादा हो, मैं हो सकता है कि पूरा प्रॉपर्टी का वैल्यू है उतने का इंश्योरेंस ले लूं, या फिर मुझे पूरे का नहीं लेना है, मैं सिर्फ पार्टली भी ले सकती हूँ उसका इंश्योरेंस। सो सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ से 50 lakhs, तो मैं 50 lakhs का इंश्योरेंस ले सकती हूँ, या फिर मुझे 50 lakhs का नहीं लेना है तो आई कैन टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 25 lakhs और लेस देन दैट। ओके, सो 50 lakhs का प्रॉपर्टी है तो 50 lakhs से नीचे का ही पॉलिसी आप ले सकते हो, उसके ऊपर का नहीं ले सकते। वॉट एवर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके ही या तो सेम या फिर उससे कम का पॉलिसी वैल्यू ले सकते हो। दैट कम्स ऑल अंडर जनरल इंश्योरेंस। Next is, in case of loss or damage, the insurance company pays compensation in the same proportion that exists between the policy value and the property value. अब अगर कुछ डैमेज हो जाता है to the building or to the property that you have insured, then the company is going to pay you compensation. ये compensation pay करेगी, लेकिन पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन नहीं करेगी। सपोज आपने जो पॉलिसी लिया था वो 50 लाख का है और आपका लॉस अगर 20 lakhs का हो गया है, तो पॉलिसी आपको 20 lakhs पूरा नहीं देने वाली। इट इज गोइंग टू सी व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, और इट इज गोइंग टू टेक सम proportion of the policy value and the property value, और उस हिसाब से आपको उसका डैमेज का compensation देगी। So this is how it is being done. Next is, all contract of general insurance are governed by the principle of indemnity, which states that an insured may not be compensated by the insurance company in an amount exceeding the insured economic loss. As a result, an insured person cannot make profit from an insurance policy. Now this point is quite very important. अब यहाँ पे क्या है, now this there is a principle that is governed by this insurance, general insurance. अब ये general insurance, as I told you, it is going to give you the compensation proportional that is going to exist between the policy value and the property value. तो जब ये आप क्लेम करते हो या फिर आप जब कुछ लॉस हो जाता है एंड देन यू गो टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर दैट लॉस, तो ये क्या करेगी, एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मोर मनी, राइट। जितना भी लॉस है उतना ही मैक्स टू मैक्स आपको इंश्योरेंस से वैल्यू मिल सकता है, या फिर उतना आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आप एक पॉलिसी लो या 2 पॉलिसी लो, कितने भी पॉलिसी लोगे तो भी जितना लॉस हो रहा है उतना ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा, या फिर उतना ही आपको
कॉम्पनसेशन मिलेगा. सो वेन एवर यू आर टेकिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम इट. आपका सिर्फ लॉस कवर होता है उसमें, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा. नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस. Fire insurance is property insurance that covers damage and losses caused by fire to the property, like buildings, godowns containing goods, factories, etc. It is possible to insure the entire property or only part of it. As I told you, fire insurance क्या होता है, सिर्फ आपको ये फायर के अगेंस्ट ही इंश्योरेंस देगा कि अगर प्रॉपर्टी में आग लग गया तो आपके पास फायर इंश्योरेंस है, देन यू आर गोइंग टू गेट द कॉम्पनसेशन फॉर दैट. सो इट कैन कवर द प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग्स, गोडाउन्स कंटेनिंग गुड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. तो इसके लिए फायर इंश्योरेंस लेते हैं. द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी वैल्यू. जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अगर 50 लाख का मेरा प्रॉपर्टी है तो हम बोलते हैं उसको दैट इज द property value. The value of the insured part of the property is called as the policy value. जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा प्रॉपर्टी अगर 50 लाख का है और मैंने पॉलिसी अगर 20 लाख का लिया, then that 20 lakhs is called as the policy value of my property which is 50 lakhs. The amount paid to the insurance company to insure the property is called as the premium. This also I have explained you. तो मैं जो अब जितना मैंने पॉलिसी वैल्यू लिया है, जो पॉलिसी लिया है उतना मैं पैसा नहीं भरने वाली हूँ, बिकॉज when I'm taking a contract with the insurance company, I'm going to pay the some amount to the company, not the whole amount. जैसे कि मैंने 20 लाख का पॉलिसी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा 20 लाख रुपया भर रही हूँ. I'm going to pay some amount to it. हो सकता है मैं 19 लाख रुपया भर दूं, 1 लाख रुपया मुझे पॉलिसी के मिलने वाले हैं. दैट इज माई, यू कैन से दैट इज द इंटरेस्ट दैट इज गिवन आफ्टर 20 years और वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग. सो दैट इज some little profit that you get. Now here the amount paid to the insurance company to insure the property is called as the premium. So we have seen what is a premium. Now प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय द पॉलिसी वैल्यू. जैसे कि अगर रेट ऑफ प्रीमियम, सपोज मैंने जो पॉलिसी लिया है उसका 5% ऑफ प्रीमियम वैल्यू है, राइट. सो 5% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, तो 5% ऑफ 20 lakhs, सो 5% ऑफ 20 lakhs हो जाएगा उसका प्रीमियम. तो मुझे प्रीमियम कितना भरना है, उतने रुपीस का भरना है. So that is the premium. The period of a fire insurance policy is 1 year and the premium is expressed as percentage of the value of the insured property. So as we have taken it over here. अब ये जो फायर इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का हो सकता है. लेकिन जब हम फायर इंश्योरेंस देखेंगे, देन फायर इंश्योरेंस इज ओनली फॉर 1 year. सो एक ही साल का फायर इंश्योरेंस होता है और हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है. सो यू कैन से द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज ओनली फॉर 1 year. और प्रीमियम भी हर साल उसका चेंज होते जाता है. In case of damage to the property due to fire, the insurance company agrees to pay compensation in the proportion that exists between the policy value and the property value. As I told you, पूरा तो पूरा पैसा नहीं देगी, वो क्या करेगी, इट इज गोइंग टू टेक द प्रोपोर्शन बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड द पॉलिसी वैल्यू. तो जो भी आएगा उतना ही वो अपने देने वाली है. नाउ द वैल्यू ऑफ द डैमेज इज कॉल्ड एज द लॉस. तो हम जितना भी डैमेज हो जाता है, अगर हमारे फैक्ट्री जिसको भी हमने इंश्योर किया हुआ है उसको अगर लॉस हो गया है या फिर उसको फायर हो गया, तो उसके अंदर कितना डैमेज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द लॉस. The amount that the insured can demand under the policy is called as the claim. तो मैं कितना, जो भी लॉस हो जाता है तो उतना लॉस तो मैं वहां पे सेंड करूंगी कि इतना लॉस हो गया, तो मैं वहां पे डिमांड कर रही हूँ कि मुझे इतना इतना लॉस हो गया है, एंड दैट डिमांड इज कॉल्ड एज द क्लेम. अब क्लेम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस. सो दिस इज हाउ द क्लेम इज गिवन. तो ये नहीं कि आपने पूरा लॉस, मतलब अगर
50 लाख के प्रॉपर्टी में अगर 10 लाख लॉस हो गया है तो पूरा का पूरा 10 लाख नहीं मिलेगा. दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. ये इस तरह से कैलकुलेट होता है और उस तरह से आप क्लेम डाल सकते हो एंड दैट मच अमाउंट विल बी गिवन टू यू. So that is about fire insurance. Let's look at the next one. The next one is the accident insurance. Personal accident insurance is a policy that can reimburse your medical cost, provides compensation in case of disability or death caused by accident. अब accident insurance क्या होता है? Personal accident insurance we are talking about. सो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, देन इन केस अगर आपको डिसेबिलिटी आ गई है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उस हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. डेथ अगर हो गया तो पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू आपको मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ द एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज कैलकुलेटेड. एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउस इंश्योरिंग व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा against to a vehicle due to accident. This policy also covers the liability of the insured person to third parties involved in the accident. Now let's look at what is this. अब personal accident policy is different than the third party insurance. ये दोनों अलग अलग हैं. अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है लेकिन ये क्या है, थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर रहा है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो इसके अंदर अगर 2 कार का एक्सीडेंट हो गया या फिर एक कार ने किसी को ठोक दिया है, राइट, सो तो सिर्फ आपके गाड़ी को अगर कुछ नुकसान हो गया तो, या फिर आपको कुछ नुकसान हो गया है, यू आर सिटिंग इन द कार, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सम बेनिफिट और द कॉम्पनसेशन ओवर हियर इफ यू आर टेकिंग अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी. बट इफ यू आर टेकिंग अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, अभी तो ये सब जगह पे कंपलसरी है फॉर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, सभी व्हीकल्स के लिए ये कंपलसरी है. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि सपोज आपके व्हीकल ने किसी को ठोका, राइट, सम पर्सन को अगर एक्सीडेंट कर दिया है, देन आपकी पॉलिसी क्या करेगा, वो जो पर्सन को आपने ठोका है उसके लिए इट इज गोइंग टू गिव द कॉम्पनसेशन दैट यू आर सपोज टू पे. जैसे कि अगर उसका हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा है तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा वगैरह सब ये पॉलिसी कवर करेगी. लेकिन अगर ये एक्सीडेंट में आपको कुछ हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपके व्हीकल का नुकसान आएगा, ना आपको कुछ हुआ है तो कुछ मिलेगा. इट इज ओनली गोइंग टू गिव द थर्ड पार्टी द मनी दैट इज compensation to it. Is it clear? There is a difference between both the policies. So ये वाला तो बहुत compulsory है सबके लिए, लेकिन ये वाला compulsory नहीं है for the vehicles. So it depends upon you. If you want to take a personal accident, it is good for you, and if you are taking a vehicle and this is a compulsory one, तो ये third party insurance का आपको लेना ही है. सो ये सिर्फ व्हीकल्स के लिए ज्यादातर यूज होता है, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट है तो आप ऐसे भी ले सकते हो. नो, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू हैव अ कार फॉर दैट. तो ऐसे भी आ सकता है, आते जाते भी एक्सीडेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सीडेंट इंश्योरेंस. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन वन मोर थिंग, दिस पॉलिसी इज ऑल्सो फॉर 1 ईयर. 1 साल के लिए ही ये पॉलिसी रहता है, हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है. Next is marine insurance. Marine insurance covers goods, freights, cargo, etc. against loss or damage during transit by road, rail, sea or air. Shipments are protected from the time they leave the seller's warehouse till the time they reach the buyer's warehouse. अब ये क्या है? ये जो मरीन इंश्योरेंस है, इट इज टेकन फॉर द कार्गो, गुड्स, या फिर जो भी हम लोग यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं गुड्स, उसके लिए ये इंश्योरेंस लेते हैं. अब ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू गिव द इंश्योरेंस अगेंस्ट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट. ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ डैमेज हो गया तो ये पॉलिसी उसको कवर करता है. अब ये ट्रांजिट जो है, मरीन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अगर कार्गो वाटर से जा रहा है तो कवर करता है. इट कवर्स द इंश्योरेंस, सॉरी, इट कवर्स द गुड्स अगेन इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड ऑन रोड, रेल, सी और एयर. कहीं पे भी
कार्गो आपका ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो। नाउ ये कहाँ से कहाँ तक वैली करता है, जैसे हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस बहुत टाइम के लिए रहता है, 1 year 2 year, इट कैन गो फॉर 20 years 30 years ऑल्सो। बट वेन इट गोज फॉर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का हमने देखा तो एक्सीडेंट का सिर्फ 1 year के लिए वैलिड था। उसी तरह से अगर हम देखते हैं मरीन इंश्योरेंस, तो मरीन इंश्योरेंस कैसा होता है, ये सिर्फ होता है ओनली फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये टाइम क्या है कि अगर गुड्स एक सेलर से लेके दूसरे सेलर तक जाने हैं, ओके, एक सेलर से लेके बायर तक जाने हैं, तो ये वाले वेयर हाउस से लेके दूसरे वाले वेयर हाउस में, दैट इज गोडाउन से लेके दूसरे गोडाउन में जाने तक का जितना भी टाइम लगता है, इट कैन बी 1 day, इट कैन बी 2 day, इट कैन बी 6 months। सो हियर जितना भी टाइम लगेगा फ्रॉम वन गोडाउन टू द अदर गोडाउन, दैट मच टाइम ओनली द इंश्योरेंस इज वैलिड। जैसे ही ये वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गया, ये इंश्योरेंस लैप्स। सो दिस इज only for that much time. Now marine insurance offers complete protection during transit goods and compensate in the event of any loss. तो अगर कुछ लॉस होगा तो ये आपको देता है प्रोटेक्शन एंड कॉम्पनसेशन। The party responsible for insuring the goods is determined by the sales contract. तो सेल कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें पता चलता है कि ये कहाँ से कहाँ तक इंश्योर किया हुआ है और किसने इंश्योर किया है, सेलर ने इंश्योर किया है या बायर ने इंश्योर किया है। ये सब वो प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, दो पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके ऊपर से हम पता कर सकते हैं। The amount of claim is calculated by the same method that is used in case of fire insurance. तो जैसा क्लेम हमने फायर इंश्योरेंस में देखा था, सेम वे द कैलकुलेशन इज डन ओवर हियर फॉर द मरीन इंश्योरेंस. आई होप you have understood this part also. So students, will stop over here for the day. Have a nice day and thank you.